very warm welcome to my Instagram page IIBM Online Bio. A pleasant evening to all of you. आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले किंगडम एनिमलिया। आप सबको पता है, इफ यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग माय चैनल, आपको पता है कि एवरी डे वी पोस्ट समथिंग और उसके अगले दिन हमें उसके बारे में चर्चा करेंगे, राइट? सो ऑन दिस बेसिस सो फार हमने क्या क्या कंप्लीट किया इन IIBM ऑनलाइन बायो चैनल में आपको मिलेगा, दैट यू विल अंडरस्टैंड इफ यू आर viewing this video for the first time. We started with bacteriophages, उसके बाद viruses की videos post किए मैंने, and then I posted on virioids, prions, lichens, and also we posted on kingdom Monera in detail, kingdom Protista in detail, and kingdom fungi in detail, kingdom Plantae and kingdom Animalia का gist which belongs to that particular chapter. And इसके साथ entire chapter is over. My dear students, imagine biological classification हमें खुद पढ़ना है तो कितना देर लगेगा, and all this video put together it is within say 1.5 hours तक हो जाएगा. So please look into this channel and it's all for your benefit and I hope to spread this message to all of you. Thank you so much. So शुरू करते हैं Kingdom Animalia. Kingdom Animalia is the last fifth kingdom in the entire biological classification. So उसकी characteristic features क्या होता है? They are multicellular. They are eukaryotic, heterotrophic mode of nutrition, especially हमारे लिए वो holozoic है, and they do not have a cell wall unlike kingdom Monera, Protista, fungi and Plantae, because outer limiting membrane is cell membrane. No large vacuoles are present. They have a diploid source of organization. Homeostasis होता है, and they have the ability to respond to external stimuli, and they have only sexual mode of reproduction, and so on and so forth. So ये सब किंगडम एनिमलिया की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, और हमको ये पता है कि एवरी किंगडम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फाइलम. सो वी हैव दैट बायोलॉजिकल हायरार्की भी है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है, जिधर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. सो एवरी किंगडम इज डिवाइडेड इनटू फाइलम. उसके हिसाब से किंगडम एनिमलिया इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू नॉन-कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स. और ये जो फ्लो चार्ट है पिछले वीडियो में आपको दिखेगा, प्लीज गो थ्रू दैट. Right? Non-chordates are divided into 10 different phylum, जैसे कि phylum Porifera, phylum Cnidaria or Coelenterata, phylum Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Hemichordata, Echinodermata, and Chordata. So these 10 phylums comes under non-chordates, and we know that Hemichordata is the connecting link between non-chordates and chordates. और chordata के अंदर again we have Urochordata, where the notochord is present only in the tail part, Cephalochordata where the notochord is present throughout the phase of its life, और Urochordata में जैसे जैसे adult बन जाते हैं तब tail part गायब हो जाते हैं, इसलिए हम उसको retrogressive metamorphosis बोलते हैं. एग्जाम्पल Ascidia, Salpa, Dolonium और that. Cephalochordata, Amphioxus, progressive metamorphosis. And Vertebrata, again Vertebrata subclasses Pisces, Tetrapoda. Ostick thighs and chondric thighs comes under Pisces, एंड टेट्रापोडा में क्लास रेप्टिलिया, एम्फीबिया, एव्स एंड मैमेलिया. और ये सब कहाँ से आ रही है? नाथोस्टोमा विद जॉ के ऑर्गेनिज्म. और एग्नाथोस्टोमा जो होता है जॉलेस वर्टिब्रेट्स, जिसकी फॉसिल हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल व्हिच इज लाइक एक्सटर्न कैटेगरी, इट इज लाइक ऑस्ट्रैकोडर्मी, और साइक्लोस्टोमा व्हिच इज देयर. सो इस तरीका से हमें लास्ट टाइम देखा. नाउ ये सारी जो फाइलम है, कौन से प्रकार से ये फाइलम को क्लासिफाई हो चुके, कौन सी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमें ये सारी फाइलम को अलग किया गया है. यस, और ये आज हम डिस्कस करने वाले, और उसके बाद कल से वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग वन फाइलम ईच. राइट? ओके, सो फर्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इस तरीका से जो फ्लो चार्ट है और हर फाइलम को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को किया वो किसी बुक में नहीं है. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप नोट्स बना सकते हैं और नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम इसको पूरा कर देंगे. राइट? सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देखो, हम सबको पता है कि पहले वी ऑल स्टार्ट विद सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स बिकम टिश्यू, टिश्यू बिकम ऑर्गन, ऑर्गन बिकम ऑर्गन सिस्टम. तो पहले सेलुलर लेवल फाइलम पोरीफेरा. आपको ये याद में रखो, पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिचॉर्डेटा, कॉर्डेटा. ये सीक्वेंस आप भूलना नहीं, क्योंकि कभी-कभी मैं बोलूंगी एस्केलमिंथस से कॉर्डेटा तक. सो दिस सीक्वेंस आपने मेमोराइज कर लिया. ओके, सो पोरीफेरा द फर्स्ट फाइलम बिलोंग्स टू सेलुलर लेवल. टीनोफोरा एंड सिलेंटेरेटा टिश्यू लेवल होता है.
प्लैटिहेलमिंथस ऑर्गन लेवल होता है क्योंकि उसकी ऑर्गन सिस्टम्स कंप्लीटली डेवलप नहीं हुए, एंड एस्केलमिंथस से कॉर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम, व्हिच मींस एस्केलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिचॉर्डेटा, कॉर्डेटा. So this is first category. Next category, body plan. Cell aggregate, blind sac body plan, tube within tube plan. Cell aggregate मतलब क्या? Porifera is only made of cells. So the cell aggregate में porifera आ जाते हैं, और फिर cylindrata और ctenophora हमको टिश्यू लेवल में आते हैं, तो उसको हम blind sac body plan बोलते हैं. Blind sac body plan is something where you just have one opening. Mouth and anus both act as just one opening, and एक ही opening से mouth and anus काम करते हैं, which is blind sac body plan. If there are two openings in the alimentary canal, which is mouth and anus, फिर उसको हम कहते हैं ट्यूब विद ट्यूब प्लान. और अभी सेल एग्रीगेट में पोरिफेरा हो गया, ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान में सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा हो गया, प्लैटिहेलमिंथस भी हो गया. अब ट्यूब विद ट्यूब प्लान में क्या होगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. सो विद इन मतलब माउथ एंड एनस दो अलग ओपनिंग्स है, एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें से एस्केलमिंथस से कॉर्डेटा तक आएगा, which means again एस्केलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिचॉर्डेटा, कॉर्डेटा. अब ये ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान में एम्ब्रियोनिक पीरियड में पहले माउथ आया, फिर बाद में एनस आया, दैट इज प्रोटोस्टोमिया. और सपोज पहले एनस आया, उसके बाद माउथ डेवलप हुआ, उसको हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया. आप इसको कैसे याद रखना? वेरी सिंपल, आप सिर्फ ड्यूटेरोस्टोमिया याद रखो. हमको पता है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान इज एस्केलमिंथस से कॉर्डेटा तक. ध्यान से सुनिए, ड्यूटेरोस्टोमिया, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा. ड्यूटेरोस्टोमिया, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा. इजी है, इजी. एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा सिर्फ ड्यूटेरोस्टोमिया, और बाकी जो भी है ना वो सब प्रोटोस्टोमिया. सो यू कैन इजीली सॉल्व द एमसीक्यूज, राइट. सो हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हो गया बॉडी प्लान. बॉडी प्लान में प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया भी हो गए. थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन सिमेट्री. हमको पता है कि हम सबको पिज्जा याद है. पिज्जा मिडिल सेंटर पॉइंट, सेंट्रल लेन से भी कट इन एनी एंगल, और वो आइडेंटिकल हाफ्स बन रही है, तो उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री. इमेजिन अ पिज्जा इन फ्रंट ऑफ यू, हम 6 लोग खा रहे हैं, 6 पीसेस बने, आइडेंटिकल पीसेस, दैट इज रेडियल सिमेट्री, राइट. इमेजिन व्हेन यू आर कटिंग इन अ सेंट्रल प्लेन and only two identical halves, जैसे हमारा बॉडी, जैसे आर्थ्रोपोडा, कॉकरोचेस का, you cut this way, two identical halves. But when you are trying to cut in this way, it doesn't form identical halves. As simple as that. So when you are cutting in one plane and it forms two identical halves, that is bilateral symmetry. कौन सी भी शेप में हम कट करो, जैसे कि अमीबा, जैसे कि पोरिफेरा, there is no symmetry form, no identical halves. That is asymmetry, right? So asymmetry से चालू करते हैं पोरिफेरा, फिर आएगा रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री में निडेरिया, टिनोफोरा, यस, और प्लैटिहेलमिंथस से कॉर्डेटा तक बाइलैटरल सिमेट्री. दिस इज हाउ यू रिमेंबर. लेकिन एक छोटी सी एक्सेप्शंस है. एकाइनोडर्मेटा की अडल्ट फॉर्म इज रेडियल सिमेट्री, लेकिन एकाइनोडर्मेटा की लार्वा फॉर्म बाइलैटरल. इसको कैसे याद रखना? देखिए, अडल्ट जब हम प्रोनाउंस करते हैं रेडियल, ड, larva, bilateral. So Echinodermata adult, radial, larva, bilateral. Done with symmetry. Fourth classification is based on germ layers. What do you mean by germ layers? All the organs which are formed from 3 germ layers during gastrulation. कौन सा 3 germ layers होता है? ectoderm, mesoderm, endoderm. यदि हमारे बॉडी में all 3 germ layers are then organs आ गया, that is triploblastic. यदि 2 ही germ layers है, ectoderm and endoderm, mesoderm नहीं है, rather वो बीच में mesoglea फॉर्म होते हैं, that is diploblastic. Diplo मतलब 2, only ectoderm and endoderm, triplo मतलब 3, ecto, meso, endoderm. और diploblastic में again you will not calculate porifera क्योंकि वो सिर्फ सेल्स है ना. germ layer कहाँ से आते हैं? जब आपको टिश्यू ऑर्गन्स होता है, so it is nidaria, टिनोफोरा. और ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लैटिहेलमिंथस फाइलम से कॉर्डेटा तक, which means again प्लैटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिचॉर्डेटा, कॉर्डेटा. हो गया. सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बॉडी प्लान हो गया, सिमेट्री हो गया, जर्म लेयर हो गया. नाउ द फिफ्थ वन इज बॉडी कैविटी. जिधर जर्म लेयर होता है उसमें बॉडी कैविटी होता है. बॉडी कैविटी को हम कहते हैं सीलोम. व्हाट इज सीलोम? सीलोम इज नथिंग बट द बॉडी कैविटी व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द गट एंड बॉडी वॉल. यदि ये ट्रू सीलोम होता है उसको हम कहते हैं यूसीलोमेट. फॉल्स सीलोम होता है उसको हम कहते हैं सूडो सीलोमेट. सूडो मतलब फॉल्स है.
यदि बॉडी कैविटी है ही नहीं, इसको हम कहते हैं असीलोमेट। अब इमेजिन बॉडी कैविटी किसमें होगा? जिसमें जर्म लेयर है, सारी जर्म लेयर्स फॉर्म हो चुके, उसी में से बॉडी कैविटी चालू होगा। सो असीलोमेट इधर ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन असीलोमेट। प्लैटीहेलमिन्थेस में 3 जर्म लेयर्स है लेकिन उसकी बॉडी कैविटी सीलो नहीं है। सो असीलोमेट एग्जांपल प्लैटीहेलमिन्थेस, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलैटरल सिमेट्री बट असीलोमेट, राइट। और इधर सूडोसीलोम मतलब फॉल्स सीलोम होता है जो एस्केलेपिन्थेस, सूडोसीलोमेट। और यूसीलोमेट हैविंग अ ट्रू सीलोम, कहां से? एनेलिडा से कॉर्डेटा तक, which means एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। डन? क्लियर? सो ये हो गया। अब बहुत इजी है इसमें, आपको दिख रही है सेगमेंटेशन। सेगमेंट है? नहीं है। सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। सेगमेंटेशन को क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। वेरी सिंपल। अनारकली सबको पता है, अनारकली। सो जस्ट रिमेंबर अनार्क, AN stands for annelida, AR stands for arthropoda, C stands for chordata। सेगमेंट जिसमें होगा, कौन सी फाइलम्स में सेगमेंट होगा? एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। अनार्क, अनारकली, राइट। अनार्क सेगमेंट होता है। रेस्ट ऑल जो भी अनार्क की कैटेगरी में नहीं आया उसमें सेगमेंट्स नहीं है। एज सिंपल एज दैट, अनसेगमेंटेड और नॉन सेगमेंटेड। ओके, नेक्स्ट इसमें एक अगेन एक्सेप्शन है, टेपवर्म, सूडो सेगमेंट। टेपवर्म के लिए फॉल सेगमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। And then the next last but one category is notochord। notochord है? नहीं है। Very simple। all non-chordates को notochord नहीं होता है, all invertebrates को notochord नहीं होता है, इसलिए उसको notochord invertebrata non-chordata बोलते हैं। और chordates को notochord होता है। So all the phylum which is coming under non-chordates belong to no notochord। और chordates का सबको notochord है, जिसमें हमें अभी इनिशियल फेज ऑफ दी वीडियो में डिस्कस किया, यूरोकॉर्डेटा, सेफलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। लेकिन ये हेमिकॉर्डेटा जो होता है, हेमिकॉर्डेटा में नाइदर दे डोंट हैव अ नोटोकॉर्ड ऐसा कह नहीं सकते, नॉर दे डू हैव ऐसा कह सकते हैं। फॉल्स नोटोकॉर्ड है। हेमिकॉर्डेटा की पार्ट्स होता है, कॉलर है, हेड कॉलर एंड प्रोबोसिस ग्लैंड। वो कॉलर के ऊपर स्टोमोकॉर्ड करके एक ऑर्गन है व्हिच इज एक्टिंग एज अ फॉल्स नोटोकॉर्ड। इसीलिए हम कहते हैं हेमिकॉर्डेटा इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन-कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। एंड लास्ट कमिंग टू सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी बहुत इजी है। सर्कुलेटरी सिस्टम हम कैसे याद करेंगे? इमेजिन AC, राइट। हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है तो हम बिना टेंशन रहना है, बिना टेंशन रहना है तो कूल AC में रहो। सो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, एनेलिडा, कॉर्डेटा, AC। सर्कुलेशन अच्छा है, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, AC। सो एनेलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा, सॉरी एनेलिडा एंड कॉर्डेटा, AC, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी जो भी है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये कहां से चालू होंगे? ऑर्गन सिस्टम से। सो इमेजिन ऑटोमेटिकली आपको एनेलिडा इधर आ गया, सो बचा हुआ आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है और हेमिकॉर्डेटा है। दिस इज हम, यू कैन रिमेंबर लाइक हम AC में बैठते हैं, व्हिच मींस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हम, हेमिकॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम AC, एनेलिडा, कॉर्डेटा, राइट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? नो चेंबर्स, द ब्लड इज डायरेक्टली बेस्ड इनटू द टिश्यूज। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? चेंबर्स होता है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर प्रॉपर्ली बाइफरकेटेड, which could be 2 chambered like fishes, 3 chambered like amphibians and reptiles exception crocodile, or 4 chambered like apes and mammals, है ना। So this is all about the classification. So किस बेसिस में, कौन सी बेसिस में क्लासिफाई किया? Let's give a quick revision next 30 seconds. Level of organization, cell, tissue, organ system. Body plan, cell aggregate, blind sac, and tube within tube plan. Within that protostomia, deuterostomia. And third becomes the symmetry, asymmetry, radial symmetry, bilateral symmetry, germ layer, diploblastic, triploblastic, and you have body cavity which is coelom, acoelomate, pseudocoelomate, eucoelomate. And you have here segmentation है, segmentation नहीं है, notochord है, notochord नहीं है. Circulatory system open, हम, hemichordata, arthropoda, mollusca. Closed circulatory system AC, annelida, chordata. This is all about the basis of classification. I will just move a second. You can take a screenshot of this, and with this we conclude today's session. Thank you so much and see you tomorrow with phylum Porifera. Good night. Take care.